Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, today again I am taking the chapter number 3, current electricity of the class 12 physics unit number 2. Today's topic, meter bridge. In the previous video, we seen about the Bridgestone bridge. What is the principle of the Bridgestone bridge, student? Bridgestone bridge is a device which is used to determine the value of unknown resistance by use of specific arrangement in the form of the quadrilateral. Okay, student, today's topic is the meter bridge. According to the board exam question, explain the meter bridge to define the value of unknown resistance under the following points. First one is the principle, second one is the current circuit diagram, third one is the description of experiment, fourth one is the observation table, and last one is the precaution. Student, we start with the principle. What is the mean of the principle? That means a concept related to experiment. That means a meter bridge. What is the principle of the meter bridge? Meter bridge is a device. Okay, student. Circuit, that means a device. Meter bridge is a device which used to determine the value of unknown resistance. Okay, student. But एक छोटी सी बात बोलूंगा, meter bridge is a device which work on the principle of Bridgestone bridge. That means मुझे जो meter bridge है वो पूरा का पूरा किसके फॉर्म में दिखाना है स्टूडेंट? Bridgestone bridge के फॉर्म में. स्टूडेंट, नाउ वी सीन द ओरिजिनल मीटर ब्रिज. एक्चुअली आपको लेबोरेटरी में मीटर ब्रिज कैसा दिखेगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे. दैट इज द मीटर ब्रिज. हियर दैट इज द स्केल. इस स्केल को हम बोलते हैं मीटर ब्रिज स्केल. द लेंथ ऑफ स्केल विल बी इक्वल ऑफ द 1 मीटर. व्हाट इज द मीन ऑफ द 1 मीटर? 1 मीटर विल बी इक्वल ऑफ 100 सेंटीमीटर. हियर a initial point, student. Here a initial point of meter bridge. That means a initial value will be equal of 0. Then the values will be increased from 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Then increase in the last value will be equal of 100 centimeter. Initial value will be equal of 0 centimeter and last value will be equal of 100 centimeter. That is the most important part of the meter bridge are known as meter scale. The length of meter scale will be equal of 100 centimeter. That means 1 meter. That is the another screw. In the initial time we seen the one screw, that is the second screw. What is this, student? This is a ब्रास स्ट्रिप. ये काय की बनी होती है स्टूडेंट? ब्रास की. ठीक है, ये याद रखिएगा. ये जो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो दैट इज द, ये जो है ये पार्ट है हमारा फर्स्ट स्ट्रिप इन द फॉर्म. जब हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? टी शेप. ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको ये भी टी शेप दिखेगा और राइट साइड में बिल्कुल सिमिलर वहां पर भी हमको एक टी शेप की कैसी प्लेट मिलेगी? ब्रास प्लेट. ओके स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द मीटर ब्रिज वी यूज्ड आर टू टाइप्स ऑफ द प्लेट. फर्स्ट one is the T shape and second one that is another brass strip but the shape just look like a rectangle. तो ये कैसा हो गया? रेक्टेंगुलर. और ये कैसा हो गया स्टूडेंट? टी शेप में. ओके, हमने तीन चीजें देख ली. फर्स्ट वन इज द मीटर स्केल. The length of meter scale will be equal of 1 meter will be equal of 100 centimeter and that is a brass strip. Brass strip कैसा शेप है इसका? टी शेप है. लेफ्ट में भी टी शेप होगा और बिल्कुल ठीक राइट साइड अनदर टी शेप. और ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये हो गया हमारे पास बिल्कुल बीच में. देखिए इन दोनों के बीच में ये गैप है और यहाँ पर भी गैप है. इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट गैप. और इसको हम क्या बोलेंगे? राइट गैप. तो हमने टोटल कितनी चीज देख ली? 4 चीज. First one is the meter scale. The length of meter scale will be equal of 1 meter. That means 100 centimeter. 1 meter that means a meter scale. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मीटर स्केल. ये क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्रास स्ट्रिप और ये कैसे हो गई? टी शेप ब्रास. ओके, ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट गैप और इसको हम क्या बोलते हैं? राइट गैप. ये जो है यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? रेजिस्टेंस बॉक्स इन बिटवीन. ये देखिए आप बोलेंगे सर आपने तो एक वायर लगाया. वायर दैट मीन्स अ शंट. शंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स. अगर जो आपके पास वायर है इंसुलेटेड कॉपर वायर तो आप उसका यूज कीजिए. अगर जो आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है दैट मीन्स अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज करेंगे इन बिटवीन द स्क्रू. जैसा कि हमने
हम जब सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम में हमने वहां पर ABCD पॉइंट लिए थे, तो उसी पॉइंट को यहाँ पर स्क्रू के फॉर्म में बता रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए आप इनिशियल स्क्रू। ठीक है, ये जो है ये पूरा का पूरा ये फर्स्ट हमारी स्ट्रिप है, दैट मीन्स अ टी शेप स्ट्रिप। फर्स्ट स्ट्रिप यहाँ कंप्लीट हो रही है, ये सेकंड स्टार्ट हो रही है, और इन दोनों के बीच की ये जो गैप है, ठीक है, इसको बोला जाता है लेफ्ट गैप, जिसके बीच में हम क्या लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स। और आपके पास दोनों कंडीशन में कुछ नहीं है तो आप एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज करेंगे। ये लेबोरेटरी वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, शंट। नाउ थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे। ये जो हमारी स्ट्रिप है, ठीक है, ये जो स्ट्रिप है ये भी हमारी ब्रास की बनी हुई है, बट इसका शेप जो है वो रेक्टेंगल के जैसा है, इसलिए इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर ब्रास स्ट्रिप। ये जो है ये हमारा एक और स्क्रू है जिससे हम गैल्वेनोमीटर को अटैच करेंगे। गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द मीन ऑफ द गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अनदर डिवाइस व्हिच यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जी लिखा हुआ, व्हाट इज द मीन ऑफ द जी? जी इंडिकेट द गैल्वेनोमीटर। सेम ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा लैब में, उस पर बी लिखा रहेगा, दैट मीन्स वोल्ट मीटर, और ए है तो वो होगा आमीटर। आपको इस प्रैक्टिकल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में आप देखिए दो टर्मिनल है, फर्स्ट वन इज द रेड एंड सेकंड वन इज द ब्लैक। हमेशा रेड टर्मिनल जो रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल का सिग्नेचर होता है, और जो ब्लैक होता है वो नेगेटिव का सिग्नेचर होता है। ओके स्टूडेंट, ये जो पूरा डिवाइस है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डीसी करंट। याद रहेगा, ये हमेशा किस पे वर्क होगा? डीसी करंट पे। आप जो एक्सटर्नल बैटरी का यूज करेंगे वो हमेशा लीड एक्यूमुलेटर होनी चाहिए। लीड एक्यूमुलेटर के, ठीक है, पॉजिटिव को आप कनेक्ट करेंगे इस पर और नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे इस पे। ओके, और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, इस स्क्रू से। ओके, और ये जो हमारे पास सेकंड, ये जो हमारी पास सेकंड गैप है, इसमें हम यूज करेंगे स्टूडेंट किसका? बोलिए जल्दी से, अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीज स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज और व्हीज स्टोन ब्रिज used to determine the value of unknown resistance by use of another 3 resistance. Okay student, now we define, बिल्कुल पास पाएंगे आपको। यहाँ पर एक हल्का सा साउंड दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए ये एक वायर है। सर ये जो वायर होता है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा। आप जब भी फिजिक्स में कुछ भी पढ़ते तो बार बार वायर की कैरेक्टरिस्टिक होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर, बट इन द केस ऑफ मीटर ब्रिज वी यूज्ड अ मैग्नीज वायर। या तो मैग्नीशियम का होगा या तो मैग्नीज का होगा, बिकॉज मैग्नीज दैट मीन्स अ अलॉय। ठीक है, ये 2 या 3 मेटल से मिलकर बना होता है। वाई वी यूज्ड अ अलॉय? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट अ पॉइंट, हर एक पॉइंट पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट। और अगर जो हम इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे क्या होती है? डिफरेंट। सो इन द केस ऑफ द मीटर ब्रिज वी यूज्ड अ वायर। देखिए जैसा मैं हाथ है, ठीक है, इसी के ऊपर, ठीक है, ये जो हमारा, ये देखिए ध्यान से, दिस इज अ, ठीक है, वायर। ये कौन सा वायर है बेटा? मैग्नीशियम वायर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल ऑफ 1 मीटर। और रीडिंग के लिए हमने ठीक नीचे, ठीक है, ठीक नीचे एक मीटर स्केल का यूज करा। जब हम यहाँ पर जोकी को टच करेंगे, ओके, जैसे मैंने ये जोकी को टच कराया, तो अगर जो मुझे रीडिंग निकालना था, आप बिल्कुल ठीक सामने देखिए 14 सेंटीमीटर, या तो आप इधर देखेंगे तो 86 सेंटीमीटर। आप कोई सी भी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटर ब्रिज। बट हियर, यहाँ पर आप देखिए एक टर्मिनल है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और आप उस तरफ देखेंगे राइट साइड भी आपको एक स्क्रू मिलेगा। इन दोनों स्क्रू के बीच में आपको एक बैटरी का यूज करना है। विदाउट बैटरी यू कांट ड्राइव अ डेरिवेशन। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, बिकॉज यू नीड द अमाउंट ऑफ करंट। और करंट हमको कहाँ से मिलेगा? बैटरी को। तो बैटरी कहाँ पर टच होगी? इस वाले टर्मिनल। और इधर देखिए मेरे साथ, जल्दी से आइए थोड़ा सा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, दैट इज द अनदर स्क्रू। तो इन दोनों स्क्रू के बीच में इस तरफ हम किसका यूज करेंगे? एक बैटरी का। ये पूरा का पूरा है डिस्क्रिप्शन किसका? मीटर ब्रिज का। अब हम बोर्ड पे जाएंगे और देखेंगे अ सर्किट डायग्राम ऑफ द मीटर ब्रिज। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ द मीटर स्केल बाय यूज ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टूडेंट, जैसा भी हमने देखा ठीक वैसा हम इसको कंपेयर करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन एंड सेकंड वन बोथ आर द टी शेप ब्रास
और ब्रास की ये बनी हुई है और ये टी शेप की है। ये क्या है हमारे पास, दो प्लेट। इन बिटवीन द प्लेट ए एंड बी वी यूज द अनदर प्लेट ऑफ ब्रास इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, इन बिटवीन ये जो फर्स्ट गैप है इसमें यूज करेंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स का, और सेकेंड गैप में हम यूज करेंगे किसका, अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज अ मीटर स्केल ऑफ द लेंथ 1 मीटर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर, एंड दिस इज अ मैग्नीस वायर। In between manganese wire, by use of screw, we attach the external battery which work on the principle of Bridgestone bridge. Student, we will start एज अ एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पेपर में आएगा, डिफाइन द मीटर ब्रिज अंडर द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल, सेकंड वन इज द सर्किट डायग्राम, थर्ड वन इज द डिस्क्रिप्शन, fourth one is the observation, and fifth one is the precaution. We will start with the principle. What is the meaning of the principle? Meter bridge is another device. Meter bridge is another device which work on the principle of the Wheatstone bridge. Okay, ठीक है, which used to determine the value of unknown resistance. What is the meaning of the unknown resistance? Maybe in the form of insulated copper wire or shunt capital S. That means a meter bridge is a device which used to determine the value of unknown resistance and also work on the principle of Bridgestone bridge. That is a simple, बहुत ज़्यादा simple principle of meter bridge. Now we will start the second topic, circuit diagram. Circuit diagram आप देख रहे हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। सर्किट डायग्राम में हमको, ठीक है, दो प्लेट का यूज करना है। कितनी प्लेट, दो। फर्स्ट वन इज द टी शेप प्लेट एंड सेकंड वन इज द रेक्टेंगुलर प्लेट। दोनों प्लेट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये काय से बनी हुई है, ब्रास से। ओके, फर्स्ट वन इज द, ये भी ब्रास से बनी हुई है और ये भी काय से बनी हुई है, ब्रास से। इसका नाम जो है, ये टी शेप होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, टी शेप ब्रास प्लेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेट। इन बिटवीन वी यूज द सम गैप, आपको दिख रहा है। पहले याद रखिएगा, ये सारा का सारा जो चीज है ये काय पर है, वुडन प्लांक पर। हमने एक लकड़ी ले ली है, उसके ऊपर हमने ये प्लेटें रखी है। प्लेट को रखने के बाद कसने के लिए हमको क्या चाहिए, स्क्रू। सो लेट वी कंसिडर बोथ आर these are behave like a open screw. In between these and this we use the meter scale of the length will be equal of 1 meter, that means 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमने एक वायर को अटैच करा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर दिस इज अ कैपिटल ए, और इसको हम कुछ नाम देंगे। ठीक है, आप आराम से देखिए, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, इसको हम नाम दे रहे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं एक नाम दे रहा हूँ कैपिटल बी, इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कैपिटल सी। लेट बी कंसीडर दिस इज अ पॉइंट कैपिटल ए कैपिटल बी। इन बिटवीन ए एंड बी, आप देखिए हमने लास्ट टाइम एक क्या देखा था, Bridgestone bridge. In the Bridgestone bridge we used a 4 resistance. How many resistance? First one is the P and second one is the Q. What is the mean of the P and the Q, student? P and Q behave like a ratio resistance, where capital R, that means a resistance box, and what is this, this is a capital S, that means a unknown resistance. We used a terminal capital A. इस वाले को हमने पॉइंट कैपिटल A बोला था, इसको हमने कैपिटल B बोला था, इस वाले पॉइंट को हमने कैपिटल C बोला था, और इस वाले पॉइंट को हमने कैपिटल D बोला था। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर we used a resistance box between the A and between the D. इसको हम D नाम दे देते हैं। A और D के बीच में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करेंगे। अभी हाल हमने क्या बोला, Bridgestone bridge is a device which work on the principle of Bridgestone bridge, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। Between the A and D we use the resistance box, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर between the D and C, what is this, C and that is a D. In between D and C we used a unknown resistance capital S. Okay student, this is a capital S, that means a shunt, that means a unknown resistance. अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बिटवीन द पॉइंट B एंड पॉइंट D, वेयर इज द पॉइंट B, मैं ये भी आपको बताऊंगा। बिटवीन द पॉइंट B एंड D we used a galvanometer capital G with any प्लग की K1। ओके स्टूडेंट, सो ध्यान से देखिएगा,
दैट इज अ पॉइंट डी, इस पॉइंट पर मैं एक गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहा, दैट मीन्स जी, और इस गैल्वेनोमीटर से जो वायर निकल रहा है, ठीक है, उसको मैं इस मैग्नीस वायर पे कनेक्ट करूंगा, मतलब मैं टच करूंगा। ओके स्टूडेंट, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको हम टच करेंगे। और गैल्वेनोमीटर का जो होता है प्रिंसिपल, ध्यान से देखिए, गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल सेंटर में, जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक पॉइंटर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पॉइंटर। तो जब हम करंट, ठीक है, एक एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी आप समझ रहे होंगे, एक्सटर्नल बैटरी दैट मीन्स अ लीड एक्यूमुलेटर, कैपिटल ई, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर अपन ने एक प्लग यूज करा, दैट मीन्स अ K2। ओके स्टूडेंट, सो एक्सटर्नल बैटरी दैट मीन्स अ एक्सटर्नल बैटरी, जैसा वहां पर है वैसे ही यहाँ पर शेप बनना चाहिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इन द केस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट विद द पॉजिटिव, सॉरी, पॉइंट ए, सो पॉजिटिव टर्मिनल विद कनेक्ट विद द पॉइंट ए, बिल्कुल ठीक वैसा ही है। ओके स्टूडेंट। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो इसमें से अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आई। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा, या तो वो लेफ्ट साइड मिलेगा या तो वो राइट साइड मिलेगा। अगर जो हम चौकी को इस तरफ टच करते हैं और मान लीजिए डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, तो इस तरफ टच करने पर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पॉइंटर इंडिकेट विद द 0 डिग्री, दैट मीन्स अ नल डिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, एट टाइम ऑफ नल डिफ्लेक्शन, जब हमको डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा? 0 डिग्री, दैट मीन्स नल डिफ्लेक्शन, उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट, और ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, लेट वी कंसीडर दिस इज अ बैलेंसिंग पॉइंट डिफाइंड बाय द पॉइंट कैपिटल बी। हम इस पॉइंट को क्या डिनोट करेंगे? कैपिटल बी। ओके स्टूडेंट, सो सर्किट हमारा कंप्लीट है। बिटवीन द बी एंड डी वी यूज द गैल्वेनोमीटर। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए टू बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी दैट मीन्स द रेजिस्टेंस बिटवीन द ए टू बी। तो हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो मैग्नीज वायर है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ए बी, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल पी। और ये जो पार्ट है बी सी, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल क्यू। ओके स्टूडेंट, ठीक है, देखिए दोनों डायग्राम बिल्कुल 110% सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन बिटवीन ए एंड डी वी यूज द रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल आर, वी यूज द रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल आर। यहाँ पर ये स्क्रू है T1, ये स्क्रू है T2, ये स्क्रू है हमारे पास T3 और ये स्क्रू है T4। इन बिटवीन द स्क्रू T1 and T2 वी असेंबल द रेजिस्टेंस बॉक्स, बिटवीन द T3 and T4 assemble the shunt. What is the mean of the shunt? That means the unknown resistance. By use of the meter bridge, we have to calculate the value of unknown resistance. Okay, student, that is a complete circuit diagram. जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो मीटर ब्रिज के साथ हमको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना कंपलसरी है, और दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। नाउ वी मूविंग विद द थर्ड पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्किट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्किट मतलब ये जो ऑपरेटर्स है इसका पूरा मुझे डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैं बार बार दे चुका हूँ। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस प्लेट? ये जो दोनों प्लेट है ये काय की बनी हुई है? ब्रास की। ओके, फर्स्ट वन क्रिएटेड बाय द ब्रास एंड नेम टी शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप। ये जो है ये हमारा लेफ्ट गैप है और ये हमारा क्या है? राइट गैप। ऑन द लेफ्ट गैप वी असेंबल द रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये राइट वाले में क्या असेंबल करा हमने? शंट। In between the point A and C, we use the manganese wire of the length 1 meter. 1 meter that means 100 सेंटीमीटर। तो देखिए बैलेंसिंग पॉइंट पे रीडिंग को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द पॉइंट A, तो हमने आगे क्या लगाया? रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक मीटर स्केल का यूज करा है। बिटवीन द पॉइंट A and C we used another external source या another external battery capital E. The amount of current will be equal of capital I, and here capital G is a galvanometer, and the another point जो वायर का दूसरा हिस्सा उसको हम क्या बोलते हैं? जॉकी। स्टूडेंट, नाउ वी टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मीटर ब्रिज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूला और डेरिवेशन। और इसी के डेरिवेशन, जब भी हम किसी सर्किट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करते हैं, तो ये जो डेरिवेशन होता है उससे फॉर्मूला ड्राइव होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट, नाउ बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट
ठीक है, लेट भी क्यों लिखे हम, ठीक है, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे व्हेन प्लग की K2 is connected. What is the meaning of the word connected? मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है. So we getting the amount of current capital I from the external battery E, which directly connected with the T-shaped brass plate. और ये किससे कनेक्टेड स्टूडेंट, रेजिस्टेंस बॉक्स से. सो अमाउंट ऑफ करंट विल बी पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स. then after connect with the another brass plate, rectangular brass plate, जिससे करंट कहाँ पे जाएगा, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से पास होता हुआ करंट कहाँ पे जाएगा, जॉकी से. जब जॉकी को हम, ठीक है, प्रैक्टिकल के दौरान हम क्या करते हैं, जॉकी को रफ नहीं करते, उठा उठा के रखेंगे किस पे, मैग्नीज वायर पे. देन वी गेटिंग, ठीक है, आफ्टर सम टाइम इंटरवल वी गेटिंग द नल डिफ्लेक्शन. सो एट अ null point, what is the meaning of the null point? That means a null deflection. null point बोलिए, या तो इसको क्या बोलेंगे, null deflection. Distance of null point from point capital A will be equal of small l. What is the meaning of the small l? Let me consider a small l is a distance of null point capital B from a point A. ठीक है, ये जो हमको टोटल हिस्सा मिला है ये कितना हो जाएगा, A, such that we can say AB will be equal of L centimeter. This part will be equal of L centimeter, but the total length of wire will be equal of 100 centimeter, such that so we can say another part BC will be equal of 100 minus L सेंटीमीटर. आपको ये बात समझ आई. जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और हमको एक नल पॉइंट मिलेगा कैपिटल बी, लेट बी कंसीडर अ डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एल, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड सी, बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल. ओके स्टूडेंट, लेट स्मॉल एक्स इज अ amount of resistance comma present in unit area. What is the meaning of this sentence? ठीक है, यूनिट एरिया मतलब पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया. ठीक है, यूनिट एरिया दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, x. द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया विल बी इक्वल ऑफ x. रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए बी इक्वल टू, देखिए सिंपल सी बात है, अगर जो आप शॉप पे भी जाते हैं और एक मार्कर खरीदा 5 रुपीज का, तो 10 मार्कर कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 5 विल बी इक्वल ऑफ 50 रुपीज. तो अगर जो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस x है, तो इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ए बी का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने अभी लेंथ बताई, द लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल ऑफ एल. सो एल इंटू एक्स, सो विल बी इक्वल ऑफ एल एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी सी इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू एक्स विल बी इक्वल ऑफ 100 माइनस एल x, equation number second. Okay student, we getting the value of resistance P and resistance Q. यहाँ पर इसका मतलब क्या है, AB that means a P and BC that means a Q. Okay, but by using principle of Wheatstone bridge. What is the meaning of the Wheatstone bridge? We know that P by Q will be equal of R by S. P by Q will be equal of R by S. Student, what is the principle of the meter bridge or Wheatstone bridge? Both are the device which used to determine the value of unknown resistance. That means मुझे यहाँ से क्या निकालना है, S निकालना है. तो थोड़ा सा मैथ्स करते हैं.
Q by P will be equal of S by R. ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, सो 1 equal to 2, so we can say 2 will be equal of 1. Okay student, we can say S by R will be equal of Q by R. Then we getting the value of S. S will be equal of, क्या हमने कर दिया है यहाँ पर, Q by P. ठीक है, so S will be equal of Q by P into R. Okay student, here S equal to, what is the mean of the Q? Q that means a resistance of part BC. ये जो BC वाला पार्ट है इसका रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, मुझे बताएंगे. 100 minus L into X and resistance of P. What is the mean of the P? P also attached with the part AB. So resistance of part AB will be equal of Lx. So the resistance will be equal of Lx into R. X will be cancelled by X. Then we getting the 100 minus L by L into capital R. In another way, when L will be separate कर देते हैं L को. So we getting S equal to 100 minus L by L, that means 1 into R. ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, that is the final expression to define the value of unknown resistance by use of the meter bridge. Here 100 is a constant number L. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको L की कुछ वैल्यू आएगी. चलिए हम ये भी करके देख लेते हैं. ओके स्टूडेंट, मान लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है, ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है. बट जब आप लैब में जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लैब में गए, आपने पूरा असेंबल करा, वेरी गुड. देन आप प्लग को स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, लेट बी कंसिडर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी इक्वल ऑफ 4 ओम. मान लीजिए यहाँ पर आपने कितना रेजिस्टेंस का यूज करा है, 4 ओम का. देखिए, जब आप जॉकी का यूज कर रहे हैं और आप यहाँ पर मैग्नीशियम वायर पे धीरे धीरे इसको टच करेंगे, देन वी गेटिंग द null deflection and the distance from the A will be equal of, मान लीजिए कितना है, 25 सेंटीमीटर. So we have to calculate the value of unknown resistance. So S will be equal 100 by L. L that means 25 minus 1 into capital R will be equal of 1. So 25, that means 4 minus 1 that means 3 into 4 will be equal of 12 ohm. So the value of unknown resistance will be equal of 12 ohm. That is a simple experiment related to meter bridge. Student, now we take the next part of the question, observation table and the pre question. Simple observation table जब भी आपको बनानी है तो आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा फॉर्मूला. We drive S will be equal of 100 by L minus 1 whole into will be equal of capital R. That means मुझे S, the value of unknown resistance निकालना, तो मुझे दो चीज़ों की जरूरत है. First one is the value of resistance, that means a capital R, and second one is the value of L. तो आप याद कीजिए L क्या होता है. L that means a distance between the A and P when galvanometer at a balancing condition, that means the amount of current passing through galvanometer will be equal of 0. यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आना चाहिए, 0. तो सर जैसे ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा तो मैं यहाँ से A और B के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूँगा. ऑब्जर्वेशन टेबल, फर्स्ट वन इज द सीरियल नंबर. अननोन रेजिस्टेंस, मैं ये भी बता देता हूँ, जब आप लैब में जाएंगे तो आपको एक बॉक्स दिखेगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बोला जाता है. ओके स्टूडेंट, वो इस शेप में होता है. यहाँ पर कुछ की लगी रहती है, दैट मीन्स 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम. तो अगर जो आपने यहाँ से 10 ओम को क्या करा है, 10 ओम की को बाहर निकाला, सो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ 10 ओम. तो पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है. सेकंड, ठीक है, जैसे हम K2 को कनेक्ट करेंगे तो मुझे यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन मिलेगा. डिफ्लेक्शन को धीरे धीरे सेट करना है नल डिफ्लेक्शन पे. तो डिस्टेंस बिटवीन द A एंड B, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल A विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल l. ओके स्टूडेंट, इन सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल में यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट, 0.
ठीक है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जैसे आपको ये मिला है तो आप यहाँ से बाय यूज ऑफ द मीटर स्केल यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। नाउ टाइम टू पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एल इन द गिवन फॉर्मूला जो हमने ड्राइव करा, एस विल बी इक्वल ऑफ आर बाय एल माइनस 1 इंटू आर। सर ये फर्स्ट टाइम आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कितना निकाला 10 ओम, फिर आप निकालिए 20 ओम, जो भी आपकी मर्जी है। आप 2-3 वैल्यूज पर डिफरेंट एल की वैल्यू निकालिए और आर और एल को पुट करके, ठीक है, एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो वी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द एस विल बी इक्वल ऑफ दिस मतलब 3-4 रीडिंग हो जाएगी बाय यूज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ मीन। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीन? अगर जो आपने 3 वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल ऑफ एस। तो मुझे एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दैट इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन टेबल। नाउ स्टूडेंट, प्रीकॉशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रीकॉशन? जब भी हम किसी प्रैक्टिकल को करते हैं तो हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? फर्स्ट वन, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक, ये कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको अच्छे से टाइट नहीं कर पाते। अगर जो हमने इसको कनेक्ट नहीं करा है तो यहाँ पर से करंट फ्लो होगा, बट इसके बाद अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ 0। मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही नहीं देगा, वो स्टार्टिंग से बिल्कुल कैसा रहेगा, वो 0 पर इंडिकेट करेगा। तो आपको लगेगा नल डिफ्लेक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, द कनेक्शन शुड बी टाइट, मतलब सारे कनेक्शन कैसे होने चाहिए? टाइट। द प्लग ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स शुड नॉट बी लूज। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने बताया यहाँ पर कीज होती है, ठीक है, तो सारी की, जैसे ये मार्कर पेन है, ठीक है, अगर जो मैं इस पेन को इसके ऊपर रख दूं तो आप समझेंगे परफेक्ट, बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट। ये थोड़ी देर बाद क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो मुझे इसको पूरा कैसा करना पड़ेगा? टाइट करना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है द प्लग ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में जितने भी प्लग है वो सारे कैसे होने चाहिए? कोई सा भी लूज नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, द करंट शुड बी पास ओनली व्हेन रीडिंग आर टू बी टेकन। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? अगर जो हमने यहाँ पे लगातार इसको कनेक्ट करके रखा है, लगातार कनेक्ट करेंगे तो लगातार करंट फ्लो होगा। ये मत सोचिए कि बैटरी खराब हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छी बैटरी है, बट अगर जो लगातार करंट फ्लो होगा तो वायर क्या हो जाएगा? वायर विल बी प्रोड्यूस द हीट एंड हीट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब अगर जो उस वायर में हीट डेवलप होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो आप सोचेंगे वो तो रेजिस्टेंस है, बट नहीं सर, आपने जो रेजिस्टेंस यूज करा है उससे भी ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी? गलत। तो याद रखिएगा, जब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब तब आप बैटरी को यूज में लाएंगे। जब आपका प्रैक्टिकल बंद हो गया तो आप बैटरी को भी क्या कर देंगे? डिसकनेक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ फोर्थ पॉइंट, जोकी। व्हाट इज द मीन ऑफ द जोकी? जोकी दैट मींस अ जे, ठीक है। जोकी शुड नॉट बी रबर विद द वायर। ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जब आप इसको यूज करेंगे तो इसके ऊपर आपको ऐसा रफ नहीं करना है, आपको पॉइंट पे टच करना। ओके स्टूडेंट, आप टच करेंगे देन वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आप टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, टच करेंगे उधर आएगा। तो याद रखिएगा, आपको जोकी को रफ नहीं करना है। I hope student you getting the all points related to meter bridge which work on the principle of Wheatstone bridge. Student please like, also subscribe and study from our channel.